सो आज हम लोगों का थर्ड क्लास है। कौन सा सब्जेक्ट का? हिस्ट्री का। ठीक है, इससे पहले भी हिस्ट्री का। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लास कंप्लीट डिस्कस किए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो आज हम लोगों का थर्ड क्लास है। वैदिक एज के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिला वाज। गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? ठीक है, तो वो था मिथिला में। और मिथिला का प्रेजेंट में नेम क्या है? वो है बिहार। তো বলছে গার্গী, মৈত্রী এবং কপিলার বাড়ি কোথায় ছিল? তারা কোথা থেকে বিলং করতেন? তো তারা বিলং করতেন মিথিলা থেকে। আর মিথিলায় এখন কি নামে পরিচিত? তো মিথিলা এখন বিহার নামে পরিচিত। এবং এই তিনজন কে ছিলেন? এই তিনজন ছিলেন গ্রেট ফিলোসফার্স। এরা দার্শনিক ছিলেন। ঠিক আছে, গ্রেট ফিলোসফার্স। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर। हम लोगों के देश में कास्ट सिस्टम किस लिए स्टार्ट किया गया था? हमारे देशे कास्ट सिस्टम কেন স্টার্ট করা হয়েছিল? তো সেটা করা হয়েছিল অকুপেশনাল ডিভিশন অফ লেবার। ঠিক আছে, অপশানটা আমরা নিচের দিকে পাবো। কি জন্য স্টার্ট করা হয়েছিল? অকুপেশনাল ডিভিশন অফ লেবার। এই যে এখানে অকুপেশনাল ডিভিশন অফ লেবার মানে কোন কাজ কে করবে সেই ভিত্তিতে কি কাস্ট সিস্টেম স্টার্ট করা হয়েছিল। যেমন ব্রাহ্মিনস ছিলেন, ক্ষত্রিয় ছিলেন, শূদ্রাস ছিলেন, দলিত ছিলেন, মানে কাজকে ডিভাইড করার জন্যই সেই সময় কী হয়েছিল? কাস্ট সিস্টেম আমাদের স্টার্ট করা হয়েছিল। সেটা বেদিক এজে। পোস্ট বেদিক এজে কী হয়েছিল? পোস্ট বেদিক এজে অন বিহাফ অফ বার্থ, জন্মের ভিত্তিতেই কাস্ট তৈরি করা হচ্ছিল। কিন্তু বেদিক এজে কি কাজ, কোন কাজ কে করবে তার ভিত্তিতে কী করা হয়েছিল? কাস্ট সিস্টেম স্টার্ট করা হয়েছিল। সো অপশন ডি উইল বি কারেক্ট আনসার। দ্য স্টেপল ফুড অফ দ্য বেদিক আরিয়ান্স। আরিয়ান্স মানে হচ্ছে বাংলায় যেটাকে বলা আর্য। তো বৈদিক আর্যদের স্টেপল মানে হচ্ছে মুখ্য। স্টেপল মতলব हो गया মেন। তো স্টেপল মেন ফুড, ফুড মানে হচ্ছে খাবার। তো মেন খাবার বৈদিক আর্যদের মেন খাবার কী ছিল? তো সেটা ছিল মিল্ক অ্যান্ড ইটস প্রোডাক্ট, দুধ এবং দুধ জাতীয় খাবার। Which of the following Vedas contains sacrificial formulae? স্যাক্রিফিসিয়াল ফর্মুলে। তো এটার অপশান, কারেক্ট অপশান হবে অপশান সি, যজুর্বেদা। যজুর্বেদাতে স্যাক্রিফাইস সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। ঠিক আছে, শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তো সেই জন্য আমাদের কারেক্ট অপশান হয়ে যাবে যজুর্বেদা, অপশান সি। দ্য উপনিষদস আর দ্য, উপনিষদগুলো কি? তো উপনিষদগুলো কি হচ্ছে? সোর্স অফ হিন্দু ফিলোসফি। টোটাল উপনিষদের সংখ্যা হচ্ছে 108 এবং উপনিষদগুলো কোন ভাষায় লেখা হয়েছে? সেটা লেখা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। আর উপনিষদ কি নামে পরিচিত? বেদান্ত নামেও পরিচিত। ठीक है, उपनिषद का और एक नाम क्या है? वेदांत। और 108 टोटल उपनिषद है और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, সো আমরা বেদিক এজ থেকে অনেকগুলো কোশ্চেন ডিসকাস করলাম। এবার আমরা আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে বুদ্ধিজম অ্যান্ড জৈনিজম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্ম, এটা থেকে কিছু কোশ্চেন ডিসকাস করব। এই চ্যাপ্টার থেকে কিছু কোশ্চেন ডিসকাস করব। দ্য ফার্স্ট তীর্থঙ্কর অফ দ্য জৈন ওয়াজ। জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর কে ছিলেন? তো সেটা ছিলেন ঋষভনাথ। ঠিক আছে, जैन लोगों का पहला तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभनाथ। तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर्स आर जैन स्पिरिचुअल गुरु। ठीक, जैनोदय गुरु जगह से जैन लोगों का जो गुरुज है उन्हीं को क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। ऋषभनाथ इज फर्स्ट आउट ऑफ 24 जैन तीर्थंकर। अच्छा, तीर्थंकर का संख्या कितना है टोटल? तो 24। टोटल तीर्थंकर संख्या कत? तो 24। ऋषभनाथ হচ্ছে ফার্স্ট। 23rd तीर्थंकर कौन है? वो है पार्श्वनाथ। ঠিক আছে, 23 নম্বর
তীর্থঙ্কর কে ছিলেন? সেটা ছিলেন পার্শ্বনাথ। এবং বর্ধমান মহাবীর হচ্ছেন 24th तीर्थंकर। वर्तमान महावीर कौन है? 24वां तीर्थंकर है, ठीक है। और टोटल तीर्थंकर का संख्या कितना है? तो वो है 24। Where did लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट? ब्रेथ हिज लास्ट मतलब अंतिम अंतिम सांस लेना, ठीक। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা। তো কোথায় করেছিলেন? তিনি করেছিলেন কুশিনগরে, ঠিক। বুদ্ধা ব্রেথড হিজ লাস্ট অ্যাট কুশিনগর। কুশিনগর কোথায় আছে? ইউপিতে আছে, একটা রিভারের পাশে। কোন রিভার? হিরণ্যবতী রিভার। হি অ্যাটেন্ড পরিনির্বাণ, ফাইনাল নির্বাণ, আফটার ফেল ইল অফ ফুড পয়জনিং। পরিনির্বাণ মানে হচ্ছে মৃত্যু, ঠিক আছে। পরিনির্বাণ মানে হচ্ছে মৃত্যু। তিনি মৃত্যু কখন গ্রহণ করেছিলেন? ফুড পয়জনিংয়ের দ্বারা, ঠিক। ওনার ফুড পয়জনিং হয়েছিল, তারপরে তিনি মারা গেছিলেন। मतलब फूड पॉइजनिंग के द्वारा ही उनकी मृत्यु हुई थी। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कब आया था एग्जिस्टेंस में? तो आया था महायाना सेक्ट। বাংলায় আছে না হিনজান এবং মহাযান দুটো সম্প্রদায়, তো মহাযানদের সময় এটা এক্সিস্টেন্সে এসেছিল। মহায়ানা সেক্ট বিলিভস ইন আইডল ওয়ার্শিপ। মহাযান যারা সম্প্রদায় ছিলেন তারা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন। কার? বুদ্ধা। অ্যান্ড বোধিসত্ত্বাস। বোধিসত্ত্বাস হচ্ছে যারা বুদ্ধাকে ফলো করে তারা হচ্ছে বোধিসত্ত্বাস। তো গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট ওয়াজ এস্টাবলিশ ডিউরিং কুষাণ এরা, ঠিক। কুষাণ বংশের টাইমে গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট কী হয়েছিল? এস্টাবলিশ করা হয়েছিল। আমাদের সঠিক অপশান হবে অপশান বি, মহায়ানা সেক্ট। Which among the following is the sacred book of the Buddhist? sacred book, बुद्धिस्ट लोगों का sacred book कौन सा है? वो है त्रिपिटक। বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোনটা? সেটা হচ্ছে ত্রিপিটক। ত্রিপিটকে কটা পিটক আছে? 3টে পিটক আছে। কি কি? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट। तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो है रा वे पा कु। तो रा से हो जाएगा राजगृह, वे से हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, एंड कु से हो जाएगा कुंडल वन, ठीक है। रा वे पाकू, रा वे पा एंड कु। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कुंडलवन। तो थर्ड का हुआ था रा वे पा, पा मतलब पाटलिपुत्र, ठीक है। अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एक्ट, कहाँ किया था वो? पाटलिपुत्र में। द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज। तो अलेक्जेंडर का टीचर कौन थे? शिक्षक कौन थे? तो वो था एरिस्टोटल। হু প্রপাউন্ড দ্য 8-fold পাথ। এটাকে আমরা বলি অষ্টাঙ্গিক মার্গ, আমার বাংলায় যেটা পড়ে এসেছি। तो 8-fold पाथ, इसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका प्रस्ताव दिया था हम लोग का गौतम बुद्धा ने, ठीक है। वो 8 पाथ क्या क्या थे वो देख लेते हैं। गौतम बुद्धा का 8 पाथ क्या क्या था? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ये 8 फोल्ड पाथ्स थे। बुद्धा मीन्स, तो बुद्धा का मीनिंग क्या होता है? तो बुद्धा का मीनिंग होता है द एनलाइटेंड वन। देखो यहाँ पे दिया हुआ है द टर्म बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन, द वन
हु हैज़ अटेंड बोधि विजडम, जो बोधि विजडम को अटेंड कर लेता है, ठीक है, लाभ कर लेता है, वही क्या हो जाता है, द एनलाइटेंड वन हो जाता है, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है, तो वो है सिद्धार्थ गौतम। उन्हीं का बाद में क्या नाम हो गया था, तो गौतम बुद्ध, ठीक। तो सिद्धार्थ गौतम পরবর্তীকালে কি নামে পরিচিত হন, তো গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। এবং বৌদ্ধ ধর্মের ফাউন্ডার কে, তো হচ্ছে সিদ্ধার্থ গৌতম। নেম দ্য ক্ল্যান বুদ্ধা বিলং টু, ক্ল্যান মানে হচ্ছে বংশ, ক্ল্যান मतलब हो गया वंश, ক্ল্যান মানে হচ্ছে বংশ। তো বুদ্ধা কোন বংশ থেকে বিলং করতেন, তো তিনি করতেন শাক্য বংশ থেকে, ঠিক। বুদ্ধা ওয়াজ বর্ন ইন লুম্বিনী, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের গৌতম বুদ্ধা, তো সেটা করেছিলেন লুম্বিনী, লুম্বিনীতে। আর তিনি কোন বংশ থেকে ছিলেন, শাক্য বংশ থেকে ছিলেন। Which of the following is not one of the animals carved on the সারনাথ পিলার, সারনাথ যে পিলার আছে, যেটা আমাদের ন্যাশনাল এমব্লেম যেটাকে বলা হয়, সেটাতে এটাও আছে, এটাও আছে, এটাও আছে, শুধু ডিয়ারটা নেই, ঠিক আছে। তো আমাদের কারেক্ট অপশন হয়ে যাবে অপশন বি। যেমনটি ছবিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা হচ্ছে আমাদের সারনাথ পিলার, সারনাথ পিলার কে বানিয়েছিলেন, এটা বানিয়েছিলেন সম্রাট অশোক, নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। তো সারনাথ পিলার ওয়াজ বিল্ট বাই অশোকা টু মার্ক দ্য সাইট অফ বুদ্ধাস ফার্স্ট সারমন, ইট ওয়াজ অ্যাডপ্টেড অ্যাজ দ্য ন্যাশনাল এমব্লেম অফ ইন্ডিয়া, যেমনটি বললাম এটাই পরবর্তীকালে গ্রহণ করেছিল ন্যাশনাল এমব্লেম অফ ইন্ডিয়া হিসেবে। অন দ্য টপ দেয়ার আর 4 লায়ন্স, উপরে কি আছে, 4টে লায়ন আছে, দেখতে পাবো এখানে, এখানে একটা, দুটো, তিনটে, একটা পেছন দিকে আছে, তো টোটাল 4টে লায়ন আছে। 4 লায়ন্স হুইচ রেস্ট অন এ ড্রাম কার্ভড উইথ, তো এই এটা বটে একটা ড্রাম, ড্রামের উপর কি আছে, 4টা লায়ন্স আছে। 4 एनिमल्स, এই ড্রামটাতে কি 4টে एनिमल के खुदाई करा হয়েছে, ठीक है, खुदाई किया हुआ है इसी ड्रम में 4 एनिमल्स को। क्या क्या है वो, एक हॉर्स है, एक ऑक्स है, एक एलिफेंट है और एक लायन है, लेकिन यहाँ पे कोई डियर नहीं है, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ लोटस फ्लावर, और सबसे नीचे क्या है, तो ये है लोटस फ्लावर, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं क्या क्या है, हॉर्स है, ऑक्स है, एलिफेंट है और लायन है, लेकिन कोई डियर नहीं है इसमें, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डियर, डियर वहाँ पे खुदाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो बुद्धा को एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, वो मिला था बौद्ध गया में, ठीक है। और बौद्ध गया कहाँ है, बिहार है। कौन सा नदी, निरंजन नदी के बैंक पे, ठीक है, किनारे पे। द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वेयर कंपोज्ड इन, तो बुद्धिस्ट लोगों का पहले का जो स्क्रिप्चर्स था वो कौन सा भाषा में कंपोज किया जाता था, वो किया जाता था पाली टेक्स्ट में, ठीक है। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट, गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, वो हुआ था लुम्बिनी में, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कौन से वंश में, तो शाक्य क्लैन में, ठीक है, क्लैन मतलब हो गया वंश। उसके उनके पापा कौन थे, तो सुधोधना उनके पापा थे, और माता जी कौन थे, तो वो थे महामाया। हु वॉज द मदर ऑफ महावीर, महावीर का मदर कौन था, वो था त्रिशाला। महावीर वॉज बॉर्न इन कुंदग्राम नियर वैशाली, वैशाली में उनका जन्म हुआ था महावीर का, कब हुआ था, 599 BC में हुआ था। उनका पापा कौन थे, तो वो थे सिद्धार्थ, ठीक है, और मम्मी कौन थी, तो त्रिशाला उनकी मम्मी थी, ठीक है। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डेपिक्ट, डेपिक्ट मतलब होता है डिस्क्राइब, तो अजंता का जो पेंटिंग्स है वो किसका स्टोरी डिस्क्राइब करता था, वो कहता था जताका का, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जताका का मीनिंग क्या होता है, जताका इज रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है।
बुद्धा, ये जो गौतम बुद्धा, इनके बर्थ से रिलेटेड है क्या जता का? लॉर्ड महावीरा डाइड एट, तो लॉर्ड महावीरा का मृत्यु कहाँ हुआ था? वो हुआ था पावापुरी में, ठीक है। कब हुआ था? 527 BC में। विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज फॉर द प्रोपागेशन? प्रोपागेशन मतलब स्प्रेड, ठीक है, फैलाना, प्रोक्लेम, और एक वर्ड है प्रोक्लेम। तो बुद्धिज्म का प्रसार के लिए वो लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे? ठीक है, तो वो यूज होता था प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट, बुद्धा उनका पहला रिलीजियस मैसेज कहाँ पे दिए थे उन्होंने? तो वो दिए थे सारनाथ में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इसी इंसिडेंट को, वो जो रिलीजियस मैसेज दे रहे थे, उसी इंसिडेंट को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, ठीक, बांग्ला की बोला धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र सेटाके बोला है। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? पहले ही पढ़ चुके हम लोग, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। पैट्रोनाइज्ड किन के द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था अशोका के द्वारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, नेपाल में बुद्धिज्म किन के रेन के टाइम आया था ना, इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो हुआ था अशोका के टाइम, ठीक है, किंग अशोका के टाइम। अशोका तो कलिंग का युद्ध पता होगा आप लोगों को, कलिंगा वार कब हुआ था? 261 BC में हुआ था, जिसमें ये भी लड़े थे, कौन? हम लोगों का अशोका। लेकिन उसी युद्ध का बाद क्या हुआ था? इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, डेड बॉडी ये सब देखकर। तो इनके बाद इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म को ग्रहण किया था, ठीक है। उसी के बाद, यही युद्ध के बाद, कलिंगा वार के बाद, ठीक, कलिंग युद्ध परे আমাদের সম্রাট অশোক বুদ্ধিজম গ্রহণ করেছিলেন। तो लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अशोका। যতগুলো কোশ্চেন আনসার আমরা ডিসকাস করলাম সেগুলো আনসার নিচে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো আজ আমরা কি করলাম? বুদ্ধিজম এবং জৈনিজম থেকে 20 কোশ্চেন ডিসকাস করলাম। আমাদের পরবর্তী ক্লাস মানে কালকে বুদ্ধিজম অ্যান্ড জৈনিজম থেকে বেঁচে থাকা কোশ্চেন ডিসকাস করব, ঠিক আছে। আর যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী চ্যাপ্টারে আমরা চলে যাব, ঠিক। তো আশা করছি ভিডিওটা তোমার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করে দেবে। আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি, ঠিক আছে। চলো, থ্যাংক ইউ।